Hello everyone. Good morning. Good morning, Chavi. Good morning, Pavni. How are you all? Very good. Good morning. Good morning. Shruti, good morning. Very good. Good morning. So, do you practice the topic that we did yesterday, the sutra that we used over the Tiragapyam for the multiplication of a three-digit number by a three-digit number? So, how many of you have practiced that those types of questions? Tell me fast. It was interesting, and if you will practice the questions regularly, then only you will be able to, perform well. Yeah. Good morning. Good morning, Kalpana. Good morning. So you need to practice it as much as you can, because that is the only way to excel and to, if you want to make your calculations paperless. In order to make the calculations paperless, you are required to practice these sutras regularly. On regular basis, if you will be practicing, that is the only way to improve your calculations. Okay, and so interesting, very good. Push, very good. Okay, it's nice. Okay, now let me first of all brief you about the competition that you are going to have on 5th of June. 5th of June को जो आपका competition होगा, उस competition के लिए you need to keep one thing in mind कि हमारे पास Google Form से, जैसे मैं अब तक आपको last week में मैंने practice कराया, that will be the way of just testing the learning that you people have done, you people will do in these 15 days. वो कंपटीशन आपका 5th of June को होगा. उसमें गूगल फॉर्म में आपको 50 क्वेश्चंस मिलेंगे एंड यू विल हैव टू सॉल्व दोस 50 क्वेश्चंस इन 30 मिनट्स. आपका पोस्टर जो है उसका यू विल सी, सर ब्लर आ रहा है. व्हाट इज ब्लर? आई कैन सी ऑन माय स्क्रीन, एवरीथिंग इज ओके. क्या आप सभी को ब्लर आ रहा है? श्रुति इज सेइंग समथिंग इज ब्लर्ड. Rest of the students, they can tell me. Okay, I was telling you about the competition. आप सभी को participate करना है, और participation जब maximum होगा तभी अच्छा competition होगा, and वहीं से हमें पता चलेगा that how much we have learned in these 15 days. Fine, 5th of June को आपका ये competition होगा, and keep one thing in mind, more and more practice. The more you'll practice, the more you will practice, more it will be good for you people to perform well in these in this exam. Fine, try to focus on my voice only, beta. If you will focus on my voice, that will be okay for you, that will be the best thing for you. So try to focus on my voice. So I told you about the competition. You need to participate, you all need to participate, and encourage your friends also to participate, because then only you'll be able to check your potential, that how much you have learned in these 15 days. Fine. So let's begin our day with some tasks that I have assigned you yesterday. You can see your presentation, your mind map, if you can see it over here in this sheet. On this sheet, kindly tell me the names, those who have forwarded these mind maps to me. I have shared your mind maps, and one very interesting presentation was shared by Pavni. I'll be just showing you some other day, because today there were some technical issues. That's why I was not able to put it on my presentation. Parul Negi, very good.
Okay, tell me your name fast. Those whose presentations, mind maps are over here on this slide. One is Parul Negi. Another one, tell me fast your names. Yeah, Tejas Sharma. Tejas, your work is highly appreciable. See this one, a big flow chart kind of thing, big mind map. This is being made by Tejas Sharma, and it is really a very nice presentation. The actual way in which I was expecting the mind map from you people, it is being made by the Tejas. And Pragya also has made a very you can say interesting and highly appealing mind map, but it was, Pragya's mind map, it was lacking some examples. We won't be able to understand many things from this. मैंने आपको भेजा था बाय कृतिका माइंड मैप बेटा. I have sent it for the selection, and the selections that I have got out of whatever I have received, means I have not selected these mind maps. I have sent it to somebody and he has made the selections because I want it to be very much fair enough. Fine. So these are some selections. If you can make something more good out of this, then definitely send these to me as soon as you will make them. So this is really a very nice try that you people have done, and today's exercise is going to be a bit more interesting for you. आज की जो हमारी exercise होगी वो और भी interesting होगी, but the thing is you need to take the participation. आपका participation जितना ज़्यादा होगा, जितना अच्छा होगा, जितना ज़्यादा आप encourage होंगे participate करने के लिए, the more it will be beneficial for you. Sir, I have sent mind maps. Nikhila Modvati Regapyam. Sir, start. Okay, that's fine. Okay, so today we are going to learn a new concept. That is finding the square of a number. Finding the square of a number. अब यहाँ भी स्क्वायर आप जानते हैं, पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे क्योंकि बच्चे यहाँ पर छोटे भी हैं हमारे साथ, and some senior students are also there. So first of all, we will discuss about the basic fundamental of what do we mean by square. Square से हमारा मतलब क्या है, पहले हम वहाँ से शुरू करते हैं, and then we will move on. If you are finding the square of any number, for example 2, square means this power 2. Power 2 का मतलब यहाँ पर होता है 2 multiplied by 2 and it will give you 4. So this 2 multiplied by 2 is 4. 3 square means 3 multiplied by 3, it will give you 9. And then we have 4 square. 4 square means 4 multiplied by 4, it is equals to 16. 5 square, it is 5 multiplied by 5, which is equals to 25. Like this. Okay, if you want to write the square of any number a, then it is given by a multiplied by a. That's how we calculate the square of a number. Fine. हम square किस तरीके से find करते हैं? This is the way to find the square of a number. Square किसी भी number का find करने के लिए हमारे पास यही method है. And in this method, to find the square of a number, we have various methods in Vedic mathematics. तो उसमें से जिस method को आज हम discuss करेंगे, that method is known as your Yav Dunam Tav Duni. I'll be writing the sutra for you. Yav Dunam Tav Duni. Tav Duni. Yav Dunam Tav Duni. Kratya. Yav Dunam Tav Duni. Kratya. Varg cha yojiye. This is the sutra.
यावदूनम तावदूनी वर्गेण यावदूनम तावदूनी कृत्य वर्ग च योजयेत्। भाई ये हमारे पास आज का सूत्र है। वट एवर इज द एक्सटेंट ऑफ डेफिशिएंसी, लेसन इट फर्दर टू द एक्सटेंट एंड देन सेट अप द स्क्वायर ऑफ द डेफिशिएंसी। यावदूनम तावदूनी वर्गेण च योजयेत्, ये हमारे पास सूत्र है। ओके, लेट मी राइट इट इन इंग्लिश आल्सो। इट इज यावदूनम तावदूनी यावदूनम तावदूनी कृत्य वर्गेण च योजयेत्। यावदूनम तावदूनी कृत्य वर्गेण च योजयेत्। अब यहाँ देखिए, व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड कि यहाँ मतलब क्या है यावदूनम। यहाँ हम इसको हम बेसिकली शॉर्ट फॉर्म में इसी सूत्र को हम यावदूनम भी कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म में यावदूनम, शॉर्ट फॉर्म में वी कॉल दिस सूत्र एज यावदूनम। फाइन। और इसी को हम बेस मेथड भी बोलते हैं। बेस आप लोगों ने पढ़ा है, बेस मेथड आपको मैंने निखिलम के पार्ट में बताया था कि बेस मेथड क्या होता है। सो दिस इज अ बेस मेथड। बेसिकली बेस आप जानते हैं, बेस क्या होता है। आपके पास 10, 100, 1000, 10,000, दीज आर द बेसिस। तो यहाँ भी हमारा जो आज का टास्क होगा, दैट टास्क विल डील विद द नंबर्स near to the base. We will find the square of the numbers near to the base. जो हमारे base के पास numbers होंगे उनका हम square find करेंगे। Now what my sutra says, यावदूनम तावदूनी, जितना दूर है नंबर आपका बेस से। फाइन। व्हाट इज द सूत्र नंबर। देखिए, ये अगर आप जाते हैं तो सूत्र नंबर 10 है आपका, जो लिस्ट आपने उठाई होगी उसमें सूत्र नंबर 10 है आपके पास यावदूनम। और ये जो पूरा का पूरा सूत्र मैंने यहाँ लिखा, ये उप सूत्र हमारे पास होता है वैदिक गणित में, यावदूनम तावदूनी कृत्य वर्गेण च योजयेत्। कि जितना नंबर आपका बेस से दूर है, मतलब जितना डेफिशिएंसी है उस डेफिशिएंसी का डबल करके आप बेस में ऐड कीजिए और फिर उसका स्क्वायर कर दीजिए। दैट इज द मेथड। अभी देखिए, ये वर्ड्स आपको समझ ना आए, लेकिन जब हम क्वेश्चंस पे चलेंगे तो वहां क्वेश्चंस में आपको क्लियर होगा। सबसे पहली जो कंडीशन है इस सूत्र की हमारे पास, वी विल फाइंड the square of numbers near the base. Find the squares of numbers near base. बेस के पास वाले नंबर्स के हम स्क्वायर फाइंड करेंगे। तो सबसे पहला जो हम एग्जांपल लेंगे, वी विल टेक द एग्जांपल ऑफ बेस 10। सबसे पहला जो हम एग्जांपल लेंगे वो एग्जांपल हमारा बेस 10 के क्लोज वाले नंबर्स होंगे। फाइन। सो व्हाट द सूत्र इज, यावदूनम तावदूनी कृत्य वर्गेण च योजयेत्। तो यहाँ बेस 10 के पास वाले नंबर्स हमारे पास क्या है। लेट्स सी, इफ यू वांट टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ 12, आप 12 का स्क्वायर फाइंड करना चाहते हैं, आपको मेथड पता होगा कि 12 का स्क्वायर आपके पास क्या होता है। देखना ध्यान से बेटा, अब यहाँ से आपका फोकस इज रिक्वायर्ड फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू। आपका फोकस बहुत ज्यादा चाहिए कि अगर आपको 12 का स्क्वायर फाइंड करना है तो सबसे पहला जो 12 है, इसके लिए हमारे पास बेस जो काम करेगा, बेस आपका 10 होगा। बेस इज 10। हाँ, खुश आप जानते हैं, वेरी नाइस। बट ये फाइंड कैसे कर सकते हैं हम सिंगल लाइन में, दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू। क्योंकि 12 के बाद फिर मैं 102 का बोलूंगा, 112 बोलूंगा। फाइन। सो देयर यू हैव टू कीप इन माइंड। सो बेस इज 10। नाउ व्हाट इज द डेविएशन इन दिस केस। इस केस में हमारे पास डेविएशन कितना होगा, डेविएशन इज 2। The deviation of this number is 2 because base से हमारा 2 ज्यादा है। So what my सूत्र says कि आप base लिखो
और बेस में 2 टाइम्स ऑफ डेविएशन कर दो, जो भी आपकी डेविएशन है उसका ट्वाइस कर दो, और आप यहाँ डेविएशन का स्क्वायर कर दो। दिस इज द सूत्र यावदुनम तावदुनी, मीन्स जितना वो बेस से दूर है उस डेफिशिएंसी का डबल कर दीजिए आप, उतनी ही डेफिशिएंसी या फिर उसमें ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पर देखो बेस आपके पास 10 है, ट्वाइस किया आपने डेफिशिएंसी का तो 2 टाइम्स आया, और यहाँ इस डेफिशिएंसी का जब आपने स्क्वायर किया तो वो आपको 4 मिला, तो 10 + 4 इज योर 14, और यहाँ 4 आ गया, तो 144 इस तरीके से आपको आंसर मिलेगा। अब देखो कुछ बच्चों को ये स्क्वायर्स याद होते हैं 10, 12, 13, 14, 15, 16, कुछ लोग याद नहीं कर पाते, तो उनके लिए ये मेथड है आपके पास। फिर से बता रहा हूं मैं आपको, सबसे पहले आप बेस लिखेंगे प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेविएशन, जितनी भी डेविएशन है उसका ट्वाइस कर दीजिए, और ये तो आपके पास हुआ लेफ्ट पार्ट। और राइट पार्ट आपके पास इस सॉल्यूशन में क्या होगा, व्हाट इज द राइट पार्ट इन दिस सॉल्यूशन, राइट पार्ट इज द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन। आपकी जो भी डेविएशन है राइट पार्ट में आपकी जो डेविएशन है, दैट डेविएशन का आप क्या करेंगे, स्क्वायर। और एक कंडीशन जो हमने निखिलम में भी की थी, और दैट कंडीशन वाज कि आपका जो राइट पार्ट होगा, in right part, Harshit, I'll explain with few more examples. अभी हम और examples लेंगे तो वहां से clear होगा। अभी आपको ये method और लिखना है यहाँ पर कि आपके पास square find करने के लिए method क्या है। I'll just write it on another screen. How to write the square of a number, base plus 2 times of deviation, जितना भी deviation है उसका 2 times कर दीजिए, ये आपका लेफ्ट पार्ट होगा, और राइट पार्ट आपके पास क्या होगा, स्क्वायर ऑफ द डेविएशन, आपकी डेविएशन का स्क्वायर। आई विल टेल यू डेविएशन का स्क्वायर। अब यहाँ पर एक चीज, एक कंडीशन जो हमने पीछे की थी कि राइट पार्ट विल कंटेन डिजिट्स equal to zeros in the base, equal to zeros in the base। बेस में जितने जीरोस होंगे राइट पार्ट में हमारे पास उतने ही डिजिट्स होंगे। अब देखो बेटे यहां से क्लियर होगा, 13 स्क्वायर अगर आप लिख रहे हैं तो आप सबसे पहले यहाँ बेस बताइए, बेस कितना है आपके पास, बेस इज 10, डेविएशन इज योर, डेविएशन इज 3। तो अगर आप फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ तो बेस प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेविएशन, डेविएशन 3 है आपका, ये तो लेफ्ट पार्ट हो गया, और राइट पार्ट में आप डेविएशन का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से आपको क्या मिला, 10 + 6 आपका 16 हो गया, और यहाँ आपके पास 9 आ गया। बताओ ये लेफ्ट पार्ट है पूरा का पूरा आपका, और राइट पार्ट में आप सिर्फ डेविएशन का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर ऑफ द डेविएशन 169। इज इट क्लियर और नॉट, क्योंकि अभी हम और आगे और भी एग्जांपल्स लेंगे। इफ यू वांट टू राइट द स्क्वायर ऑफ 14, देखो अब इसे ऐसे भी आप याद कर सकते हो, अगर आप चाहो तो इसे ऐसे याद कर लो, नंबर प्लस डेविएशन, जो भी नंबर है उसमें डेविएशन को ही ऐड कर दो। ओके श्रुति, वी विल टेक मोर एग्जांपल। श्रुति सबसे पहले मुझे ये बताइए, डू यू नो द बेस और नॉट। सबसे पहले आपको ये मेथड याद रखना है कि मेथड में है क्या आपके पास, बेस याद रखना है, बेस क्या होता है आपके पास। तो अभी हम बेस 10 पे काम कर रहे हैं, उसके बाद बेस के बाद आपके पास यहाँ आता है ट्वाइस ऑफ डेविएशन, 2 मल्टीप्लाइड बाय डेविएशन, 2 मल्टीप्लाइड बाय डेविएशन, ये आपके पास लेफ्ट पार्ट आ गया। और राइट पार्ट आपके पास क्या आता है इसमें स्क्वायर के लिए, व्हाट इज द राइट पार्ट, स्क्वायर ऑफ द डेविएशन, डेविएशन का क्या कर दो आप, स्क्वायर कर दो, क्योंकि डेविएशन हमारा वी विल बी टेकिंग अ सिंगल डिजिट नंबर, तो डेविएशन का हम स्क्वायर करेंगे।
अब देखो यहाँ पर जब आपने 14 का स्क्वायर लेना है तो 14 स्क्वायर के लिए आपका बेस जो है वो 10 है प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेविएशन. व्हाट इज द डेविएशन? डेविएशन आपके पास 4 है यहाँ पर, और डेविएशन का स्क्वायर का मतलब 4 का ही स्क्वायर करेंगे आप. तो यहाँ 10 प्लस 8 आपका 18 हुआ, और यहाँ 4 का स्क्वायर जो होगा वो आपके पास 16 होगा. ये राइट पार्ट आया आपके पास. बट क्योंकि मेरे बेस हमारे पास यहाँ पर क्या है, बेस इज 10, बेस के अंदर एक जीरो है, तो राइट पार्ट में हमारे पास सिर्फ एक ही जीरो होगा. सो वी विल ट्रांसफर दिस वन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. तो यहाँ पे आंसर आपके पास 196 हो जाएगा. आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर देंगे. राइट वाले पार्ट में हम डेविएशन का स्क्वायर करते हैं. स्क्वायर का मतलब अभी मैंने समझाया, 4 पावर 2 का मतलब है 4 इंटू 4. 4 इंटू 4 आपका क्या होता है, 16. डेविएशन स्क्वायर 4 स्क्वायर का 4 पावर 2 का मतलब है 4 इंटू 4, वो आपको 16 मिलेगा. तो राइट पार्ट में हम डेविएशन का स्क्वायर कर देते हैं. अब यहाँ थोड़ा सा पार्ट, ये चीज आपको समझनी होगी. लेट्स टेक 16 स्क्वायर. अब देखो हम सिंगल लाइन में लिखेंगे इसको. 16 स्क्वायर में आपको ये पता है बेस कितना है, बेस इज 10, डेविएशन इज 6, डेविएशन 6 है. तो राइट पार्ट में 36 होगा. 6 यहाँ लिखा, 3 कैरी फॉरवर्ड कर दिया, और नंबर के अंदर 10 प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेविएशन. तो 6 2 are 12, 10 प्लस 12 इज 22, और यहाँ ये आपके पास 3 कैरी फॉरवर्ड 6 आपको यहाँ मिला. ये 3 जो कैरी फॉरवर्ड हुआ है ये यहाँ जाकर ऐड हो जाएगा. तो 256 इज योर आंसर. सो दिस इज द थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड कि आपको देखो, अगर किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है तो जस्ट काइंडली मेंशन इट हियर, बिकॉज जब हम नंबर्स बड़े लेना शुरू करेंगे तो वहां पर आई सपोज दैट यू आर नॉट सपोज टू फेस दीस काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स. यू आर सपोज टू राइट योर आंसर्स डायरेक्टली देयर. इफ आई विल टेक 18 स्क्वायर, तो 18 स्क्वायर आप कैसे लिखोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल 10 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 8, क्योंकि यहाँ डेविएशन हमारे पास 8 है, डेविएशन इज 8. देखो बेटा फॉर्मूला जो यहाँ पर है आपके पास, स्टिक टू दिस फॉर्मूला. बेस प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय डेविएशन. कौन सा पार्ट क्लियर नहीं है आप वो मेंशन करें, लेफ्ट पार्ट या राइट पार्ट. और फिर डेविएशन का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द डेविएशन. डेविएशन ये राइट पार्ट है आपके पास. सो यू नीड टू मेंशन द पार्ट व्हिच इज नॉट क्लियर टू यू सो दैट आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड. Yeah, we can take big examples also, no problem. We will take big examples also. तो 18 के लिए देखो बेटा, 18 जब आपने लिखा तो सबसे पहले 18 स्क्वायर में आप क्या लिखोगे? बेस आपके पास क्या है? बेस इज 10, तो बेस आपने 10 लिया, बेस आपने 10 लिया. सो टेकिंग द बेस 10, so your base is 10 plus 2 times of deviation, deviation is 8, और फिर यहाँ 8 का स्क्वायर. ओके, वी विल गो फॉर स्टेप बाय स्टेप ऑल्सो. एक ये लिख देता हूं मैं, उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे. यहाँ आपको 64 मिलेगा, तो 4 यहाँ लिया आपने, 6 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, और उसके बाद आपके पास 8 2 16, तो 26 आपको ये मिला. 26 प्लस 6 इज 32, तो 324 इज द आंसर. अब जिस स्टूडेंट को क्लियर नहीं होगा उसके लिए हम यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. फॉर बेस 100, अब देखना आपको बेस 100 के लिए मैं एक क्वेश्चन बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ. पहले मैं आपके लिए फॉर्मूला लिख दूं. किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर आपने फाइंड करना है तो आपके पास जो टास्क है वो ये चलेगा, बेस प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेविएशन. आई होप आप लोगों को ये टर्म डेविएशन
पता होना चाहिए कि डेविएशन का मतलब क्या है, और लेफ्ट और राइट पार्ट जो मैं आपको लिख रहा हूँ इसका भी मतलब आपको पता होना चाहिए। यहाँ आपके पास ये डेविएशन स्क्वायर आपने लिखा, तो देखो हमने नंबर लिया 104 का स्क्वायर, 104 स्क्वायर। मैं यहाँ स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ आपको, फिर हम सीखेंगे कि सिंगल लाइन में भी आंसर हम कैसे लिख सकते हैं। तो 104 का स्क्वायर लिखना है, बेस आपके पास 100 है, डेविएशन आपके पास 4 है, डेविएशन इज 4। तो लेफ्ट पार्ट जो आप लिखोगे, व्हाट इज द लेफ्ट पार्ट, बेस प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेविएशन। तो यहाँ आपको मिला 100 प्लस 8, इट इज इक्वल्स टू 108। राइट पार्ट में आपके पास क्या होगा, जो भी आपकी डेविएशन है उस डेविएशन का आप स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ डेविएशन 4 है, राइट पार्ट होता है आपके पास डेविएशन स्क्वायर। बच्चों के आंसर आने शुरू हो गए, वेरी गुड, डेविएशन स्क्वायर। बट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उन सभी के लिए जिनको अभी भी डाउट है। तो डेविएशन 4 है तो 4 की पावर 2, पावर 2 का मतलब है 4 into 4, सो इट इज 16। अब देखो राइट पार्ट में 2 डिजिट आने हैं क्योंकि मेरे बेस में 2 जीरो हैं, तो 104 का जो स्क्वायर हमें यहाँ मिलेगा वो मिलेगा 108 लेफ्ट पार्ट और 16 राइट पार्ट। निशा गुप्ता आपने गलत लिखा है आंसर, 1096 नहीं होगा बेटा। हमने यहाँ क्योंकि बेस 100 है तो आपके राइट पार्ट में 2 डिजिट्स होंगे निशा गुप्ता, यू हैव टू कीप इट इन माइंड। आपको ये याद रखना है कि आपके राइट पार्ट में 2 डिजिट्स होंगे, बिकॉज बेस 100 पे हम काम कर रहे हैं। पिछले क्वेश्चन में हम बेस 10 पर काम कर रहे थे इसलिए हमने 1 डिजिट रखा था। अभी भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन राइट सर व्हाट ऑफ 134 स्क्वायर। ऋषभ 134 मैंने अभी आपको देखो स्टार्टिंग में मैं आपको अपनी फर्स्ट स्लाइड फिर से दिखाता हूँ, वहां मैंने कुछ आपको कंडीशन लिखा था, फाइंडिंग द स्क्वायर ऑफ नंबर नियर बेस। अब जैसे मैंने आपको जनरल मल्टीप्लिकेशन सिखाई थी ना, ऐसे ही हम अगले सेशन में एक जनरल स्क्वायर फाइंड करने वाला मेथड भी सीखेंगे जिसमें किसी भी नंबर का आप स्क्वायर निकाल लोगे। बट अभी आप कौन से नंबर्स के स्क्वायर पे काम करोगे, यू विल बी वर्किंग ऑन द स्क्वायर ऑफ द नंबर्स विच आर क्लोजर टू द बेस। तो अभी आपको ये नहीं सोचना कि बहुत बड़ा नंबर, अभी क्लोजर टू द बेस का मतलब 100 से लेकर के 112 तक आप चले जाओ, क्योंकि उतने बेस से उतना दूर रहो जितने का स्क्वायर आपको पता है, बेस से बहुत ज्यादा दूर जाने की आपको अभी जरूरत नहीं है। सो यू हैव टू कीप इन माइंड कि यू हैव टू टॉक अबाउट द नंबर्स व्हिच आर नियर टू द बेस। ओके, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, let's take another example, and what that example is, my next example आप लोगों के लिए एज अ क्वेश्चन भी काम करेगा, 107 का स्क्वायर। तो 107 के लिए कैन यू टेल मी द बेस, बेस क्या प्लीज राइट द बेस फॉर 107 स्क्वायर। 107 स्क्वायर के लिए बेस क्या होगा, 100। वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। What is the deviation? Kindly mention the deviation also. Kindly mention the deviation also. Okay, let's write the base is 100. Base is 100. Base हमारे पास 100 है. The deviation that we have is deviation is 7. The base is 100. The deviation is base 100 and deviation 7. So we will be writing the formula base plus 2 times of deviation, twice of deviation. ये हमारे पास सूत्र है जिसे हम यूज करते हैं
और राइट पार्ट में आपका डेविएशन का स्क्वायर होगा, सो यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड. इट मींस 100 प्लस 2 times of 7 and then 7 square. This is the right part. So 100 plus 14, it is 100 plus 14 और right part में आपका 7 square is 49. So 11449, it is the answer. 11449. Very good. Harshit, very good. Very good. Nisha Gupta, very nice. So you started with समझ नहीं आया तो समझ आया तक हम पहुंच गए हैं. That is something very interesting that you people are started responding, giving the correct answers. और अभी देखना जैसे जैसे हमारा सेशन एंड होता जाएगा, एंड तक हम सिंगल लाइन में आंसर्स लिखना शुरू कर देंगे. We will be, I'll be expecting you to write the answers of the number near to the base without any calculations. बिना किसी कैलकुलेशन के हम आंसर्स ले. Okay, find the square. Find the square of. I write this in single line without calculation. Very good. बेटा अभी स्टार्टिंग में मत लिखो. स्टार्टिंग में आप सिंगल लाइन में लिखने की कोशिश मत करो, क्योंकि अगर अभी से सिंगल लाइन में लिखना शुरू करोगे तो आप कॉन्सेप्ट को भूल जाओगे कि हमारा ये कॉन्सेप्ट क्या है. फिर आपको बेसिकली कुछ क्वेश्चंस आप अभी कर लोगे, बट लेटर ऑन आपको क्या रहेगा कि आप सिंगल लाइन लिखने की कोशिश करोगे और आपके आंसर सही नहीं आएंगे. फाइन. So you have to keep in mind कि initially you have to focus on the sutra, that how we have to apply sutra in these questions. हम सूत्र का प्रयोग कैसे करेंगे इन क्वेश्चंस में, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. Let's take another example. 109. 109 का अगर हमें स्क्वायर करना है तो देखो 100 प्लस डेविएशन 9 है इसमें, तो 9 2 से 18 आ जाएगा आपके पास, और 9 का स्क्वायर 81 आ गया. तो 11881. दिस इज माय आंसर. Yeah, we will do the cubes also. We can do the square and square root all. There is long list that we can, long list of topics that we can solve using Vedic mathematics. वैदिक मैथ्स से हम बहुत सारे कहते हैं ना, देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट जो आप सिंप्लीफाई कर सकते हो क्वेश्चंस की. कि लेट्स मूव ऑन. अगर आपको यहाँ बोला जाए 112 का स्क्वायर, तो देखो थोड़ा सा याद रखना, बेस आपके पास 100 है और डेविएशन इस बार आपके पास 12 है. देखो ऋषभ, आपने जो क्वेश्चन पूछा था, जितना आप बेस से दूर होते चले जाओगे उतना आपको बड़ा स्क्वायर अपने आप याद करना होगा. जैसे आप 12 का स्क्वायर आप पीछे कर चुके हो, स्क्वायर ऑफ 12 आपका कितना होता है 144, ये आपको याद रखना है. तो यहाँ देखो आप क्या करोगे, बेस प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेविएशन, दैट इज 24 हो जाएगा. और फिर 12 का स्क्वायर जो आपने करना है, वो 12 का स्क्वायर यहाँ आपको, ये 124 हुआ, 12 का स्क्वायर 144 होता है. बट बिकॉज वी आर ऑन बेस 100, सो आई नीड 2 डिजिट्स ओनली. हमें सिर्फ 2 डिजिट्स चाहिए, तो इस 1 को हम यहाँ ट्रांसफर कर देंगे. सो वी आर गोइंग टू हैव 12544. दिस इज आवर आंसर. 12544. Pavni, very good. Harshit, very nice. See, अभी वैदिक मैथ्स हम यूज कर रहे हैं, सो यू हैव स्टार्टेड राइटिंग द आंसर्स इन अ सिंगल डिजिट. आपने सिंगल डिजिट में आंसर लिखना शुरू कर दिया, बट विदाउट वैदिक मैथमेटिक्स ऐसा पॉसिबल नहीं था कि अगर 112 का आपसे स्क्वायर पूछा जाता. आप लोग एग्री करेंगे शायद मेरे स्टेप से कि अगर मैं आपको 112 का
स्क्वायर में पूछता तो आप लोग कुछ ऐसा करते 112 मल्टीप्लाइड बाय 112 और उसके बाद ये स्टेप्स आते हैं आपके पास 422 मल्टीप्लाइड बाय 112 मल्टीप्लाइड बाय 112। ये सारे स्टेप्स आपके चलते और इन सारे स्टेप्स के चलते आपका 4 4 5 2 1 ये इतने स्टेप्स में आपको आंसर मिलता। एम आई राइट और रॉन्ग? अगर आपने वैदिक मैथ्स का अभी ये जो हमने फॉर्मूला किया, जो सूत्र हमने किया, सूत्र का नाम मैं आपके लिए दोबारा से रिपीट करता हूँ, यावदूनम तावदूनी यावदूनम तावदूनी प्रत्यवर्गेण च योजयेत्। अगर हम इस सूत्र का प्रयोग ना करते तो कुछ आपका इतना ही सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स चलने के बाद आपका आंसर आता। आई वांट रिस्पांस फ्रॉम एवरीबॉडी कि आपके इतने स्टेप्स होते या नहीं होते। वेरी गुड, हाँ इतने ही स्टेप्स होते। वेरी नाइस। अब देखो और हम इसमें आगे चलते हैं कि अगर स्टूडेंट से पूछा जाए कि 1007 का स्क्वायर 1007 का स्क्वायर आप लोग बताएंगे। आप मुझे 1007 का स्क्वायर क्या होगा? वेरी गुड, हाँ वी कैन यूज ऊर्ध्वतिर्यकाभ्याम। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, वी कैन यूज दैट आल्सो। उसे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जब बेस के देखो ऊर्ध्वतिर्यकाभ्याम में आपको 3 वाला बहुत लंबा मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। अगर आप बेस के पास हो तो आपके लिए और इजी मेथड है। और स्क्वायर फाइंड करने के हमारे पास और भी मेथड्स हैं, अलग अलग सूत्र हैं हमारे पास जिसके हेल्प से हम स्क्वायर फाइंड करते हैं। तो यू हैव टू कीप इट इन माइंड कि जो परफेक्ट सूत्र है किसी पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर आपको उसी को यूज करना है। ऐसा नहीं होगा कि आप किसी को भी यूज कर सकते हो, नो इश्यूज, बट उसमें आपकी कैलकुलेशंस बढ़ेंगी। छवि का आंसर आ गया 101449। छवि थोड़ा सा ध्यान से आंसर 049। छवि जस्ट अपने आंसर को एक बार थोड़ा सा रिव्यू करो बेटा, आंसर को रिव्यू कीजिए। छवि पावनी वेरी गुड। आपका बेस है 1000, डेविएशन है 7, तो यहाँ 14 आ गया, ट्वाइस किया। और 7 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो 1014 ये तो पार्ट आया। 7 का स्क्वायर मुझे मिला 49, बट बिकॉज मैं बेस कौन से बेस पे क्वेश्चन मैंने अभी आपको पूछा 1000 बेस पर मैंने क्वेश्चन पूछा है, तो in 1000 base we have 3 zeros. So what you have to keep in mind कि right part में आपके पास 3 digits होने चाहिए। Yes, very good छवि, कृतिका, that's nice। ऋषभ वेरी गुड। 049 हमने क्यों लिखा ये आपको याद रखना है। निखिलम सूत्र जो हमने प्रयोग किया था वहां से आपको इसका आंसर मिलता है 1014,049। अब यहाँ सोच के देखो, अगर ये वाला स्क्वायर, पूनम तिवारी योर आंसर इज रॉन्ग। 1014 is the left part only, right part भी लिखेंगे आप 049। very good, 049 is the right part। nice, very good, very good। कुछ जैन आपका आंसर सही नहीं है, आपने सिर्फ 09 लिखा। 09 is not the answer। श्रुति वेरी नाइस बेटा। ओके, लेट मी आस्क यू वन मोर क्वेश्चन। अब एक और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। 1009 का कोई मुझे स्क्वायर बताएगा? 1009 स्क्वायर ऑफ 1009। स्क्वायर ऑफ 1009। बी फास्ट। भूमि बंसल का आंसर आया है 1009,081। नो भूमि, आपने यहाँ डेविएशन का ट्वाइस नहीं किया। 1018,081। वेरी गुड छवि, वेरी गुड हर्षित, वेरी गुड अनुराधा त्यागी। खुश जैन, बहुत खुश जैन का भी कुछ आंसर में प्रॉब्लम है। पुलकित पवार आपके आंसर में अभी भी, पुलकित ने पिछला ही आंसर लिख के भेजा है अभी। ओके, दैट्स गुड। चलो देखते हैं हम लोग 1009 इसका स्क्वायर हम कैसे लिखेंगे। 1000 प्लस ट्वाइस ऑफ डेविएशन
डेविएशन का जब हम ट्वाइस लिखेंगे तो ट्वाइस ऑफ 9 हमने यहाँ लिखा और फिर 9 का स्क्वायर हमने किया, तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा 1018, दैट मीन्स 1018। और डेविएशन का जब हम स्क्वायर करेंगे, डेविएशन का स्क्वायर हम करेंगे तो डेविएशन का स्क्वायर हमारे पास है 81, सो वी विल बी राइटिंग 081। सो माय कंप्लीट आंसर इज 1018081। दिस इज माय आंसर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, वेरी गुड वेरी गुड। अब देखो इसी कंटेक्स्ट में अगर हम आगे बढ़ते हैं, एंड आई विल बी राइटिंग द स्क्वायर ऑफ, can you write the square? ओके कृतिका, वेरी गुड कृतिका, सही है। अब देखो ये पार्ट आपके पास है। बेस बताएंगे सबसे पहले मुझे, व्हाट इज द बेस। और बेस मुझे डिजिट्स की फॉर्म में नहीं बताएंगे आप, बेस जो यहाँ मुझे बताएंगे, यू विल बी टेलिंग मी द बेस इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। आप नंबर की फॉर्म में बेस बताएं तो ज्यादा बेटर होगा। प्लीज टेल मी द बेस। बेस इज 10,000, वेरी गुड, बेस हमारे पास 10,000 है, वेरी नाइस। So 10,004, base is 10,000. So I'll be writing here 10,000 plus 2 times of deviation का मतलब सिर्फ 8 मिलेगा यहाँ पर, और 4 का स्क्वायर आपको 16। लेकिन यहाँ 0 0 लिखेंगे आप, 0016, तो आपको क्या मिला यहाँ 10008 0016। See, now you can yourself imagine how easy your calculations will become if you are using the Vedic Sutra। अगर आप वैदिक मैथमेटिक्स का सूत्र यूज कर रहे हैं तो आपकी कैलकुलेशंस कितनी इजी हो जाती हैं। How easy your calculation become if you are using the sutra, fine। So this is something quite interesting you people have to keep in mind कि we can make lot of questions on this basis। इस particular topic पर हम बहुत सारे questions बना सकते हैं, बहुत सारे questions हम फ्रेम करके यूज कर सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन कैसे आएगा। अभी जो पिछला टॉपिक हमने किया बेस 10 पे, आपने स्क्वायर्स मुझे बड़ी इजीली बता दिए। नाउ इफ आई विल बी आस्किंग यू अ क्वेश्चन, व्हाट is the value of this 12 square plus 14 square? Can we write it directly 12 square plus 14 square? अगर हम डायरेक्टली लिखना चाहें तो देखो बेस आपके पास 10 प्लस 4 और फिर से दूसरे 14 का भी बेस 10 प्लस 4 टू 8, ये आपके पास टोटल लेफ्ट पार्ट आ गया। देखो अभी मैंने अलग अलग करके लिखा, उसके बाद हम इसे कंप्लीट एक साथ भी लिख लेंगे। 10 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 8, ये पार्ट हमारे पास आ गया लेफ्ट, और राइट पार्ट क्या होगा आपके पास 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। सो दिस इज 20 प्लस 12 इज 32, ये 32 आपके पास लेफ्ट पार्ट, और 16 प्लस 4 इज 20, ये आपके पास राइट पार्ट। अब क्योंकि बेस 10 पे है तो हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक डिजिट चाहिए लेफ्ट राइट पार्ट में, तो 043 340 इज योर आंसर। आप डायरेक्टली लिख सकते हैं बिना नंबर्स को ऐड किए, बिना नंबर्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन किए। यू कैन राइट द आंसर्स डायरेक्टली। Very nice, very good. Okay, let's proceed. Okay, let's see. Let's take one more example. 104 square plus 107 square plus 103 square. वेरी नाइस। यहाँ देखना बेटे, सबसे पहले तीनों नंबर्स बेस 100 पे है, तो 100 100 100 लेफ्ट पार्ट लिखते हैं पहले हम इसका। लेफ्ट पार्ट 100 100 100, तो दिस इज लेफ्ट, LEFT लेफ्ट। तो यहाँ 300 तो आपके पास ये हो गया, प्लस
ट्वाइस ऑफ डेविएशन, पहले की डेविएशन 4 है तो यहाँ 8 आ जाएगा, 7 है तो यहाँ 14 आ जाएगा, और 3 है तो यहाँ 9 आ जाएगा। तो ये आपने लेफ्ट पार्ट लिख लिया। 14 प्लस 6 20, 22, 22 प्लस 9 इज 31, तो 331। ये आपके पास लेफ्ट पार्ट आ गया। राइट पार्ट आपके पास क्या होगा? राइट पार्ट राइट 9, oh sorry, it is not 9, this will be 6, 3 2s are 6, so this is 328। ये 9 नहीं होगा आपके पास बेटा, यहाँ डेविएशन आपके पास 3 है, यहाँ डेविएशन आपके पास 7 है, यहाँ डेविएशन आपके पास 4 है। इनका 2 टाइम्स करेंगे तो 8 आएगा, 14 आएगा और 6 आएगा। राइट पार्ट में इन डेविएशंस का हम स्क्वायर करेंगे, 16 प्लस 49 प्लस 9, ये आपके पास राइट पार्ट होगा। आई हैव चेंज दिस राकेश नेगी एंड पुश 10। राइट पार्ट में आपके पास 9 आएगा बिकॉज वहां आपको स्क्वायर करना होता है। तो राइट पार्ट यू हैव टू कीप इन माइंड कि राइट पार्ट में आपके पास क्या होगा? 9 होगा। तो ये आपके पास हुआ 58, 58, 68, 70, 74, 74। This is 74. Now see, you're on base 100, so 3, 2, 8, 40. This is what you have to keep it in mind. 3, 2, 8, 7, 4. किसी ने 3, 2, 8, 6, 4 लिखा था, 7, 4 आपका आंसर होगा। सर आप राइट पार्ट एक बार और समझा दो। राइट पार्ट में हमारे पास क्या है? डेविएशंस जो थी, डेविएशन आपके पास 4 है तो 4 का स्क्वायर किया आपने, यहाँ 7 है तो 7 का स्क्वायर किया, और 3 है तो 3 का स्क्वायर किया। 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर आपका 49 और 3 का स्क्वायर आपका 9। दिस इज हाउ यू विल गेट द स्क्वायर्स। इस तरीके से आपको स्क्वायर्स मिल जाएंगे। तो देखो कितनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस हैं, और इन कैलकुलेशंस को आप एक सिंगल लाइन में कर सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा कि हाउ वी कैन डू दिस कैलकुलेशन इन अ सिंगल लाइन। सिंगल लाइन में हम कैसे इसे प्रोसीड करेंगे। ट्राई टू लर्न दैट थिंग कि how we will proceed this calculation in a single line. Let's do it. We have 108 square plus 102 square plus 105 square. This is very good. It is going to be easy, but only when you are using the Vedic mathematics sutra. Otherwise इसके लिए आपको सबके स्क्वायर अलग अलग मल्टीप्लाई करके फाइंड करने पड़ते, तभी आप इसे फाइंड कर पाते। अदरवाइज आपके लिए पॉसिबल नहीं होता। अब देखो कैसे सिंगल लाइन में हम करेंगे। 100, 100, 100, 3 बेसिस हैं आपके 100, 100, 100, तो ये आपका 300 हो गया। उसके बाद डेविएशन 8 है तो 8 2s are 16, डेविएशन इज योर 2, so 2 2s are 4, और डेविएशन इज योर 5, 5 2s are 10। ये आपका लेफ्ट पार्ट हो गया। नाउ फॉर योर राइट पार्ट, 8 आपके पास डेविएशन है तो 8 का स्क्वायर आपका 64, स्क्वायर ऑफ 2 is 4, और 5 का स्क्वायर आपका 25। ये आपका राइट पार्ट। Fine. So this is going to be very interesting for you. 2030. So it is 330. ये आपका लेफ्ट पार्ट आ गया। राइट पार्ट में यहाँ तक ना आपको 2 डिजिट्स चाहिए। Fine. What you need is 29, 30, 60, 30, 90, 93 आपको यहाँ मिलता है, तो 33093। You are writing 330. Very good, Bhumi Bansal. Very nice, beta. Rishabh has also come up to the correct answer. Kalpana 331. How you are getting 331, Kalpana? Please recheck your question. Very good. Nisha Gupta has also got the correct answer. 33093. Very nice. Chavi, I have not got your answer. Fine. Very good. Okay, good, 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 Chavi. Very nice. Very good. Kush Jain, very nice. Now what you thought, is Vedic mathematics making our calculations easier or not? What is your
thoughts about this कि वैदिक मैथ्स हमारे कैलकुलेशंस को इजी बना रहा है या नहीं. This is what I want to know from you people. Is Vedic mathematics making your calculations easier or not? Very good. Very nice. Yes, it is making the things easier. Now see, today's home assignment is you are going to do it yourself. What the thing you have to do, make a worksheet of 30 questions. From all topics covered till date. All topics covered till date. आज तक हमने जितने भी टॉपिक करे हैं, सभी टॉपिक की एक वर्कशीट में आपको सारे टॉपिक्स के क्वेश्चंस इंक्लूड कराने हैं. ऐसा नहीं कि एक ही टॉपिक से 30 क्वेश्चंस बना देंगे, आपको मिक्स क्वेश्चंस बनाने हैं. और बेस्ट वर्कशीट जो होगी वो सिलेक्ट होगी, और वो कल मैं आपको सबसे पहले इनिशियली स्टार्टिंग के 5 मिनट्स में मैं आपको वो वर्कशीट अपनी स्क्रीन पे दिखाऊंगा, और आप सभी को सॉल्व करके टुडे यू विल नॉट गेट द क्विज. आज का आपका यही काम है. कल मॉर्निंग में उसी क्विज की हेल्प से आप सभी का असेसमेंट होगा, जिसकी बेस्ट क्विज होगी. ओके, एंड वन मोर थिंग यू हैव टू, आई विल गिव यू अ नोट. व्हाट दैट नोट इज, include mixed calculations also. Include questions on mixed calculations. अब देखो बेटा, इस चीज के दो फायदे होंगे. Questions on mixed calculations. Mixed calculations मैंने कई जगह आपको कराई है, कई जगह नहीं कराई, तो आपको mixed calculations को भी इंट्रोड्यूस करना है. फाइन. And send your entries on this email ID. This is the email ID that I'm mentioning it. आज आपको रिपोर्ट नहीं भेजनी, आपको आराम से ये काम करना है शाम तक. और आपको जो लोग कंप्यूटर से बना सकते हैं वो अपना कंप्यूटर से बनाकर भेजें, और जो हैंड रिटन देना चाहते हैं वो हैंड रिटन दें. यस बेटा, पहले आप क्वेश्चंस फ्रेम करोगे, उनको सॉल्व करोगे, आंसर्स लिखोगे. आंसर्स लेकिन उसी वर्कशीट पे मत लिखना, अदरवाइज मैं जब यहाँ स्क्रीन पे शो करूंगा तो सबको आंसर्स भी दिखेंगे. फाइन. और बेस्ट जो होगा सिर्फ एक ही वर्कशीट में शो करूंगा, बट बेस्ट बच्चे की सबसे बेस्ट जो क्वेश्चंस होंगे वो. मिस्टर शर्मा, आज कोई क्विज नहीं है. आज का होमवर्क यहाँ स्क्रीन पे आपको दिख रहा है. यू कैन सी द होमवर्क ऑन द स्क्रीन. होमवर्क इज, आपको एक वर्कशीट बनानी है 30 क्वेश्चंस की, और उसमें आपको सारे के सारे टॉपिक्स इन्वॉल्व करने हैं. जितने भी टॉपिक्स हमने अभी तक किए हैं वो सारे टॉपिक्स आपके इन्वॉल्व होंगे, और उसके बाद आपको वर्कशीट सॉल्व करनी है. सॉल्यूशंस अलग, एक पीडीएफ सॉल्यूशंस का, या अगर आप पीपीटी की फॉर्म में बनाना चाहते हैं या वर्ड डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं, कैसे भी बना के आप भेज सकते हो. या हैंड रिटन देना चाहते हो तो हैंड रिटन भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. हैंड रिटन अगर आप देते हो तो पीडीएफ की बजाय इमेज की फॉर्म में आप मुझे भेजो, दैट इज बेटर वन, बिकॉज इमेज में डायरेक्टली यहाँ शोकास्ट कर सकता हूँ. फाइन. सो सेंड इट टू मी इन द फॉर्म ऑफ इमेज. बट कोई भी क्वेश्चन जो मैंने आपको कराए हैं वो रिपीट मत करना. यू हैव टू फ्रेम योर ओन क्वेश्चंस. अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए आपको खुद बनाने हैं. सर, कैन वी क्लिक स्क्रीनशॉट? हाँ, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस होमवर्क. अदरवाइज ये आपको अभी रावल डिजिटल मंच के पेज पर भी आपके लिए अवेलेबल होगा. फाइन. सो यू कैन सी इट फ्रॉम देयर ऑल्सो. थैंक यू. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट. अब हम बात करेंगे हमारे कंपटीशन का. मैं आपको फिर से याद दिला दूं, ये जो मैं इस वीक में जितना भी आपको टास्क दूंगा
पिछले वीक में मैंने आपको वो चीजें करा दी जिसके हेल्प से आप को क्विज कैसे अटेम्प्ट करना है वो आपने देख लिया. नाउ टुडे व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड, अब से इस वीक में जो हमें टॉपिक्स मिलेंगे वो टॉपिक्स इसी टाइप से मिलेंगे. जब 30 क्वेश्चंस आप अपने आप बनाओगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स की प्रैक्टिस होगी कि आप कॉन्सेप्ट्स को कैसे जब आप क्वेश्चंस फ्रेम करोगे तो कॉन्सेप्ट आपको सोचने पड़ेंगे. कॉन्सेप्ट सोचोगे तो अपने आप सारे के सारे टॉपिक्स आपके रिव्यू होते जाएंगे. And if you find any problem in any of the concept, then you can write me on my email ID कि sir this is a topic that we need some revision. मुझे कुछ और भी चीजें इसमें समझनी है. If I find time और अगर हम उसको incorporate कर पाए अपने आगे आने वाले sessions में, then definitely I'll incorporate all your queries in the upcoming sessions. But I want you people to give your maximum participation in the quiz that we are going to have on 5th of June. Keep yourself ready. और उसमें अच्छा participation कैसे होगा जब आप अपने friends के साथ ये सभी चीजें circulate करोगे. Fine, all the registered participants are going to participate. So if you have not registered, then kindly register yourself. And next thing is, सबसे important, keep on revising the concepts that we are doing. Keep on revising. Okay, thank you all. Thank you very much for today. Hope you are enjoying the Vedic mathematics sessions. Bye.